रेलवे स्टेशन से ही देखा जाता है लोग कैंडिडेट को, ऐसा नहीं होता है। एंड लकीली आई हैव सिक्योर्ड ऑल द टाइम्स इन अ सिंगल डिजिट रैंक विद 1 2 4 and 5. Like officer like quality that one should have. Gave 19 attempts, got 4 times recommended for Indian Navy officer. 100 odd people reports at day 1. So out of which around 20 to 30 people will be staying there for the next 4 तो days. अभी कुछ क्वेश्चंस शेयर करोगे जो आपसे पूछे गए थे, आपने उनको कैसे डील करा था? I also joined Naval Academy, and due to some reasons I have to drop from academy. More attempts means lower chances. People those who make it, हम उनको कल्टियंस करके बोलते हैं. I challenged my verdict of Revy Medical को. कल्ट एसएसपी का मतलब क्या हुआ? मछली क्यों फंसी? क्योंकि मछली ने अपना मुंह खोला. तो मछली को उतना ही मुंह खोलना चाहिए जितना है ना उसको एक्सपेक्टेड हो. एसएसपी इज ऑल अबाउट इंग्लिश फ्लुएंसी. तो ये ड्रीम था, आपने इतनी मेहनत करी इस चीज़ के लिए, आपने इतने अटेम्प्ट्स दिए एंड आफ्टर दैट दिस थिंग हैपेंड. तो हाउ यू डील विद दिस मेंटली? ये जर्नी स्टार्ट हुई थी फरवरी 2022 में और टुडे 2026. So yes, it's been around 4 years and we have got a base of 10,000 plus students across the country. फिर उसके बाद मैंने गेट एग्जाम दिया, क्वालिफाइड गेट. राइट नाउ स्टडीइंग इन आईआईटी गुवाहाटी. काफी बार आपको इनिशियल डेज में छुप छुप के खाना पड़ सकता है. So, hello everyone, welcome to the other episode of our podcast series Let's Talk, learning from every journey, big or small. So, today we have a very special guest with us, Pallab Datta, who has cleared multiple defense exam, gave 19 attempts, got 4 times recommended for Indian Navy officer, and not only that, he is the founder of Cult SSB. So, firstly, I welcome you to the today's podcast and thank you so much for taking out time for this. Thank you so much, Chahak, for inviting me, and it's always a grateful experience to share all these things to all your audience. Thank you so much. For everyone who is listening, I also want to tell that he is a live example of never giving up. Even after you fail, you can start again. And with not only that, he's also a mentor, a teacher, inspiration of many students who have achieved their dreams with his guidance, his mentorship. So, Pallab, could you tell us more about yourself, your journey, your life? So starting from the very basics, like I belong from West Bengal, but presently living in Visakhapatnam, and also doing masters in development studies from IIT Guwahati. So coming back to the journey which you have highlighted and जिसको हम आगे भी cover करेंगे, is I have given around 19 SSBs in my life, out of which I have got recommended 4 times, 3 times for Indian Navy and 1 time for Indian Army, for all the technical entries, starting with SSC, Naval Architecture, Logistics, and TGC entry for mechanical branch. And luckily, I have secured all the times in a single digit rank with 1 2 4 and 5 consecutively. And I have also been part of NCC. I also joined Naval Academy, and due to some reasons, I have to drop from academy. And thereafter, I was working in Tata Steels previously. That is like that is my placement job, which I took up after my BTech mechanical. And thereafter, I switched to Tech Mahindra, and post that I joined a marketing company. And thereafter, I also worked with various edtech firms, which includes Physics Wala as well as an academy. And thereby, parallelly, I was also working to start my own startup, which happens to be Cult SSB at present. And we have guided more than 10,000 plus students across the country. And there are a lot of people, a lot of students from our institute who have made it to the services, and out of which 75 are commissioned officers till date. So this is a little bit about our initiative and about us. That's really wonderful journey, Pallab. So you came from a mechanical background, right? And you also joined this NCC. So when you thought of joining the army? Okay, so since my childhood, like I've seen my father, like he used to serve in Indian Navy, recently got retired. So कहीं ना कहीं वो inclination रहा ही था कि देश की सेवा करनी है and all. This motivated my elder brother also to wear the uniform, and particularly he also got recommended in his times, and thereafter he joined into Indian Navy. So कहीं ना कहीं बचपन से था, and thereby I also tried for NCC during school times, but unfortunately couldn't clear the selection round of NCC, which is I would say blessing in disguise. Thereby मैंने push किया अपने आप को college days में, and I got selected in NCC in army wing in my university. So वहाँ से थोड़ा NCC का inclination रहा, and thereby I was giving SSBs through my NDA times. तो धीरे धीरे वो inclination चलते चलेगी. ओके, सो बिफोर मूविंग फर्दर, आप एनसीसी के बारे में बताओगे कि एनसीसी आपने ज्वाइन कैसे कर सकते हैं एंड उनके बेनिफिट्स क्या होते हैं फॉर ज्वाइनिंग एनसीसी? Right. So NCC is a youth organization which is the largest volunteer force. Like अगर आप तीनों सर्विसेज से combine भी कर दोगे तो NCC की इतनी बड़ी population है, and it stands for National Cadet Corps.
Or person who would like to join NCC can join either in the school days, like either in the ninth or 10th standard, or these days in 11th, 12th as well. Or else they can join in their engineering, yeah, any graduation or any degree in their first year or second year onwards. And thereafter, there are three certificates: A, B, and C certificate. C happens to be the topmost certificate. और ये आप तीनों करते हो like in consecutive years. Like if you join in school times, you generally get A and max to max B certificate. C is generally being given during college times. पहले C भी मिल जाता था school times से, but these days it has got little strict. And thereby in college times, you can directly join into the B certificate. That is nothing but B1 and B2, जो first year and second year में होता है. And thereby, as soon as you're done with your C certificate in your third year, you will be eligible to go for, there is an entry called NCC Special Entry for Indian Army particularly. And you can also try for Navy as well as Air Force. अलग अलग और भी एंट्रीज रहती है, डायरेक्टरेट और आपको ग्रुप हेडक्वार्टर में जाके पता करना पड़ता है. This is for all the NCC cadets who will be watching this. And based on that, you get this SSB call letter, और फिर आप SSB दे सकते हो. Apart from फौज, there are other benefits for NCC as well, like it develops your overall personality. आपको एक आर्मी के साथ नेवी या एयरफोर्स के अटैचमेंट करने का मौका मिलता है. लाइक यू आर क्लोजली सीइंग देयर रूटीन, देयर work culture, and also you will be a part of it. And a lot of camps will be there. You will be having a good bonding with all the people across the country. And there are a lot of big camps, national international camps as well, like YEP हो गया, RDCs हो गया, थल सैनिक camp, and there are a number of camps. And ऐसे करते करते you get an exposure. Thereby there are also some sort of bonus marks in paramilitary services. आप जब काफी लोग CAPF की भी तैयारी करते हैं, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस, उसमें भी रहता है. And there are many corporate firms who prefer NCC cadets because of their discipline and the toughness they have inculcated during their phase of this, like during the tenure of NCC. So these are the benefits, and a person can join in this all format. तो एनसीसी अगर ज्वाइन करनी हो किसी को तो उसका प्रोसीजर क्या रहता है? एनसीसी को अगर ज्वाइन करना है तो सिंपल प्रोसीजर है कि देर आर, आई वुड से कि सबसे पहले तो है कि आपको एक बेसिकली फिजिकल टेस्ट देना होता है. सो दिस फिजिकल टेस्ट हैपेंस टू बी ऑफ वेरी सिंपल, लाइक थोड़ा भागना होता है आपको अराउंड 2.5 किलोमीटर. एंड बेस्ड ऑन दैट आपको 2.5 भी नहीं, समटाइम्स इट्स 1.5 एज वेल. तो वो क्लियर करने के बाद यू हैव टू डू सम पुशअप, देन सिटअप्स, एंड देन क्रंचेस, लिटिल बिट. एंड फिर उसके बाद यू विल बी अंडरगोइंग, देर इज अ रिटन एग्जाम. ठीक है, रिटन क्लियर करते हो. इट डिपेंड्स ऑल्सो ऑन यूनिट टू यूनिट एज वेल. कभी कभी किसी किसी यूनिट में सीधा रिटर्न होता है फिर फिजिकल टेस्ट होता है. सो अगेन इट डिपेंड्स. एंड देन रिटर्न के बाद लिटिल बिट ऑफ मेडिकल्स एट सम यूनिट्स, नॉट श्योर, मतलब नॉट पर्टिकुलरली श्योर, क्योंकि किसी किसी यूनिट में होता है, हमारे यूनिट में नहीं हुआ था. तो देर आर सम ऑफ माई फ्रेंड्स हु अंडरगॉन लिटिल बिट ऑफ मेडिकल्स. And thereafter some, yeah, interview is also mandatory, conducted by the unit commanding officer या administrative officer या कभी कर ग्रुप, जो भी आपके ग्रुप कमांडर है, समथिंग लाइक दैट. तो बेस्ड ऑन दैट ये तीन टायर रहते हैं. एंड जो भी ऐसे कैंडिडेट्स फिल्टर आउट होते रहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर 100 लोग आए रनिंग करने के लिए, तो बेस्ड ऑन दैट अराउंड 50 विल बी सिलेक्टेड फॉर द रिटर्न, एंड फिर द 20-25, एंड जितना वैकेंसी है उसके हिसाब से दे विल टेक द प्रोपोर्शनेट नंबर. And in this way, the candidates or the cadets will be selected for the NCC. ओके. एंड मैंने ये भी सुना है कि एनसीसी में जैसे होता है आपको एक कैंप बाहर जाने का मौका मिलता है, एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कैंपिंग की. तो आपके लाइफ में ऐसा हुआ है कि आप बाहर गए हो, एंड ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? कोई ऐसा इंसिडेंट जो आपको बहुत ज्यादा अभी तक याद हो एनसीसी का? राइट राइट राइट. बहुत सारे मौके मिलते हैं. आई वुड नॉट से दिस कि नहीं मिलते हैं. एनसीसी गिव्स यू टन्स एंड टन्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज टू गो आउट. काफी बार ऐसा होता है कि कैडेट जब ज्वाइन एनसीसी करता है तो उसे लगता है कि क्या ही मौका है. बट अगर वो एक बार इंडल्ज हो जाता है तो उसको फिर अपनी पढ़ाई से ज्यादा तो एनसीसी में ज्यादा इंटरेस्ट आ जाता है. So I also got interested into that, and I did camps which includes like IGC, RDC. तो ये सब बड़े बड़े camps होते हैं. Basically, there is this called intergroup competition for RDC, and then pre-RDC किया था. Then there is this, during our time COVID happened, so we also were fortunate to do an online camp from with Delhi Directorate, since I belong from AP and Telangana Directorate. एंड फिर हमने ऐसे कुछ कैंप्स किए थे. एंड इसके अलावा और भी आप जा सकते हो, लाइक देर आर माउंटेनियरिंग कैंप्स, देन देर आर लॉट ऑफ अटैचमेंट कैंप्स लाइक IMA अटैचमेंट, नेवल अकेडमी, AFA अटैचमेंट्स, और इवन विथ मिलिट्री लाइक एस्टेब्लिशमेंट लाइक EME अटैचमेंट, फिर इन्फेंट्री यूनिट के साथ अटैच रहते हैं. एंड ऑल्सो विद नेवल अटैचमेंट्स, शिप्स सबमरीन्स के साथ, मतलब नॉट डायरेक्टली विद सबमरीन्स ऑब्वियसली, तो रॉकेट्स वगैरह के साथ रहते हैं. एंड इन दिस वे बहुत सारे आपको घूमने फिरने के मौका मिलता है. Coming to the incident which I feel
मतलब विच इज स्टिल देयर इन आवर माइंड इज ऑनलाइन कैंप की बात करूंगा, बिकॉज हार्डली वी वर प्रिपेयर्ड फॉर इट, बिकॉज इट वाज फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड। एक एनसीसी कैंप ऑनलाइन हो रहा है एंड विद सम ग्रुप जो कि कोई बहुत दूसरी दुनिया में बैठे, मतलब ऑब्वियसली वी वर इन विशाखापट्टनम आंध्रा एंड देयर आर पीपल फ्रॉम दिल्ली। सो काइंड ऑफ बहुत दूर दूर बैठे, बट स्टिल बिकॉज ऑफ द गॉड्स ग्रेस ऑफ ऑनलाइन मीडिया एंड दिस थिंग, हमने प्रॉपर गूगल मीट के थ्रू कैंप अटेंड हुआ था। lot of event happened, presentations, cultural things. तो देयर वाज अ सेट ऑफ लाइक सेट टाइम, मॉर्निंग 10 टू लेकर 2 o'clock तक कुछ कुछ होते थे एक्टिविटीज, एंड उसमें हमने पार्ट लिया था। तो उसमें इवन दो ऑनलाइन था, तो द वे वी सिंक्रोनाइज्ड, द वे वी कोऑर्डिनेटेड डिस्पाइट कोविड एंड लॉट ऑफ मेंटल ट्रोमा एंड अदर थिंग हैपनिंग, हमने बहुत अच्छे से कोऑर्डिनेट किया एंड लकीली एंड फॉर्चुनेटली वी रियली परफॉर्म्ड वेल। एंड बिकॉज ऑफ ऑल दोस थिंग्स आई वाज आल्सो फॉर्चुनेट इनफ टू गेट प्रमोटेड जल्दी जल्दी ड्यूरिंग माय एनसीसी टाइम। एंड आई गेस ये काफी अच्छी बात रहती है अगर आप जैसे एनसीसी में, मुझे लगता है कि हर एक जो पर्सन होता है एनसीसी में, दे टेक देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी वेरी सीरियसली, इवन इधर इट्स ऑनलाइन और इट्स ऑफलाइन। राइट राइट, वेरी सीरियसली, एंड दैट एक्चुअली आपको आसपास भी लोग जब आप देखते हो है ना, व्हेन दे आर पुशिंग देयर सेल्फ, सो इट बिकम्स अ मोरल एंड एथिकल ड्यूटी कि यू शुड आल्सो पुश। एंड धीरे धीरे आपको लगता है हाँ यार, हाँ तो सीखने के लिए आए हैं हम, तो क्यों आपको खाली रहना चाहिए, तो इट इज गुड कि आप इंडल्ज हो और आ ही जाते हैं नेचुरली। बिल्कुल। तो मूविंग फर्दर पर, जैसे कि आपने 19 अटेम्प्ट्स दिए हैं इन टोटल एंड यू गॉट 4 टाइम्स रिकमेंडेड। तो स्टार्टिंग फ्रॉम योर एनडीए जर्नी, पहले तो आप थोड़ा बताएंगे कि एनडीए होता क्या है जिन लोगों को नहीं मालूम, एंड उसके बाद आपने इसकी क्वालिफिकेशंस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या रहता है। Right. So, all right. So, as Chahak has already mentioned regarding NDA, so NDA happens to be an institute. It happens to be an academy in Pune, Khadakwasla. It is a premier defense academy for all the officers who see anywhere in news or anywhere in doing a lot of activities. So basically, that is the very first door, your first academy where a candidate actually dreams for. So there is this exam called Union Institute called UPSC. तो ये एनडीए एग्जाम कंडक्ट करवाती है, NDA/NA एग्जाम। सो एनी वन हु इज अराउंड 16.5 to 19.5 of in their age, male and female included, and they are in their either in their final year of like in the either in their 12th standard or in their like first year or second year partially, so they can apply for it as per their age as well as education qualification. Minimum criteria is around 60 percentage in physics, chemistry, maths and biology. Probably you can check the notification, and based on that एक रिटर्न होता है, 2 पेपर होते हैं उसमें, and after clearing that you have to undergo an SSB interview which happens to be Services Selection Board, जो कि हम आगे भी कवर करेंगे धीरे धीरे। एंड पोस्ट दैट वी विल हैव अ मेडिकल्स जो सिलेक्ट हो जाएंगे, एंड फिर मेरिट लिस्ट एंड फाइनली द ज्वाइनिंग इनटू द नेवल नेशनल डिफेंस एकेडमी। सो ये एनडीए इज मोटा मोटा इज लाइक एनीवन हु वांट्स टू जॉइन आर्मी नेवी एयरफोर्स एज एन ऑफिसर, दैट बिकम्स अ ट्राई सर्विस इंस्टीट्यूट जिसमें आपको सबको ट्रेनिंग मिलती है एंड इवेंचुअली इट हैपेंस। एंड या, सो दिस इज ऑल अबाउट एनडी। लाइक एज आई डोंट नो मच अबाउट इट, तो आई गेस एनडीए का एग्जाम होता है जो क्लियर करते हैं, देन उसके बाद आगे जो फर्दर स्टेजेस होती हैं एसएसबी, एंड उसके बाद आपको एकेडमी में सिलेक्शन मिलता है, राइट? तो जी, आपने जैसे कि एनडीए एग्जाम क्लियर करा है, एनी टिप्स जो कि आप देना चाहोगे उन स्टूडेंट्स को जो कि एनडीए एग्जाम देने वाले हैं या फिर देंगे आगे। राइट। सो बेसिकली इंडिया एग्जाम का सिलेबस काफी ज्यादा आपके 12th और 11th स्टैंडर्ड के साथ ओवरलैप होता है। सो दोज आर वाचिंग दिस शो, दे शुड ऑलवेज रियलाइज वन थिंग, दैट देयर इज अ बुक कॉल्ड एनसीईआरटी जो आप लोग हमेशा पढ़ते हो, एनसीईआरटी along with your जेई मेंस एंड अदर प्रिपरेशन। ऑब्वियसली काफी लोग और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होते हैं इस टाइम पे और डिफरेंट कॉलेजेस। तो एनसीईआरटी को थरोली पढ़ना है ऑफ मैथ्स, लाइक 11th के भी मैथ्स के बुक और 12th की भी, बिकॉज मैथ्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, काफी लोग वो क्लियर नहीं कर पाते उसका कट ऑफ। फिर लिटिल बिट अबाउट फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाता, बायोलॉजी इज ऑल्सो वेरी नॉर्मल लेवल, ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, एकदम 12th क्लास के हाई लेवल बायोलॉजी आ गई, वेरी बेसिक 10th लेवल का भी काफ़ी है। लिटिल बिट अबाउट योर करंट अफेयर्स, थोड़ा बहुत आपको पता रहना चाहिए व्हाट इज हैपनिंग अक्रॉस द ग्लोब नेशन एज वेल एज हियर एंड देयर विद सम स्कीम्स एंड ऑल्सो विद रिलेटेड टू सम इकोनॉमिक्स, थोड़ा बहुत यू कैन ऑल्सो गो थ्रू PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, जिससे कि काफ़ी अच्छा आइडिया आ जाता है। एंड देर इज अ बुक फ्रॉम अरिहंत पब्लिशर, Pathfinder, which is a very good book. Till date, I have seen a lot of juniors of me. They are also doing that. So you can rely on that book, and there are a lot of YouTube channels. आप वहाँ से भी go through कर सकते हो। तो these are few tips which I would like to give, क्योंकि हमारे टाइम में तो I used to refer NCERTs, PYQs and Pathfinder, and उससे बार बार I was able to clear NDA written exam.
ओके देन आपने से एनडी एग्जाम क्लियर करा था बट यू couldn't क्लियर एसएसबी इनिशियली बट देन यू गेव इन लाइक अटेम्प्ट्स एंड यू गॉट 4 times रिकमेंडेड। तो आपकी एसएसबी की जर्नी शुरू कब हुई? एंड इवन क्योंकि देखिए जब होता है ना इतनी बार हम लोग नहीं कर पाते वी गिव अप एंड यू स्टेड कंसिस्टेंट एंड आपने हार नहीं मानी। तो वैसी स्ट्रेंथ लाए कैसे आप एंड वो गिव अप ना करने का कैसे आपका मोटिवेशन रहा? राइट। सो ऑलराइट, सो रिफ्रेमिंग योर क्वेश्चन, आपने पूछा कि हाउ डिड आई स्टार्टेड माय जर्नी एंड या इवेंचुअली हाउ आई मेड माई सेल्फ कंसिस्टेंट। राइट। So the journey started in 2017 सितंबर, जब मैंने अपने पहला रिटर्न दिया। मतलब बेसिकली इट वाज माय सेकंड इंडिया रिटर्न, जो कि 12th स्टैंडर्ड में कोई भी कैंडिडेट देता है। एंड आई गिव दैट एग्जाम, फॉर्चुनेटली क्लियर्ड इट। दिसंबर या नवंबर में आई गॉट टू नो कि आई क्लियर्ड इट, एंड जनवरी में एसएसबी थी। तो आई गेव माई फर्स्ट एसएसबी इन 2018 जनवरी, इन 33 एसएसबी भोपाल। एंड यस, आई दो आई प्रिपेयर्ड बट अनफॉर्चुनेटली कुडंट क्लियर। तो कहीं ना कहीं वहां से सबसे पहला सेटबैक लगा एट अ वेरी यंग एज ऑफ 17 16 हाफ आई गेस। सो फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स आई फेल्ट कि नहीं, देर आर एरियाज विच आई हैव टू लर्न। कहीं ना कहीं बचपन में होता है कि सिंस यू क्लियर वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम, तो यू आर ऑलरेडी एट द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। तो दैट मेड मी मोर हम्बल। सो कमिंग बैक टू द सेकंड पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन कि हाउ आई मेड माई सेल्फ कंफर्टेबल एंड कंसिस्टेंट इज ये जर्नी ऐसी है एसएसबी की, जो आपको एक लेवल पे लेकर आई जाती है एक टाइम के बाद। कि आप कितना ही हवा में रहो या कितना ही आप सोचो कि यू आर गुड एट एवरीथिंग, दैट विल मेक यू एट ग्राउंडेड। एंड एट द सेम टाइम यू मीट लॉट ऑफ पीपल जिनके लाइफ की जर्नीज और टफ रहती है। यू लर्न फ्रॉम देम, यू नॉट जस्ट लर्न फ्रॉम योर सीनियर्स जूनियर्स, बट ऑल्सो फ्रॉम द इकोसिस्टम। आप देखते हो कि हाँ, ये इकोसिस्टम के लिए यू हैव टू inculcate such values, principles, as well as the qualities, famously known as 15 OLQs। तो धीरे 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 डेवलप होते रहते हैं एंड स्लोली स्लोली कंसिस्टेंसी आई जाती है। एंड यस, इंट्रोस्पेक्शन जो कि बार बार आई वर्कड ऑन इट, कि जहाँ पे जो भी लग रहा है आई यूज टू सीक एडवाइस गाइडेंस, एंड नॉट जस्ट सीक एडवाइस गाइडेंस बट ऑल्सो टाइम देना होता है खुद को। काफी बार ऐसा होता है कि हम सिर्फ सब जगह से गाइडेंस और नोट्स इकट्ठा कर रहे हैं, बट फिर मैंने अपने आप को टाइम दिया एंड बाकी चीज़ों पे भी फोकस किया कि लाइफ में और भी इंपॉर्टेंट एरियाज थे। सो इवेंचुअली जैसे जैसे एज आया एंड जैसे जैसे एसएसबीज आगे बढ़ते गई, फॉर्चुनेटली आई क्लियर्ड ऑल दोज अटेम्प्ट्स। तो लाइक फॉर दोज हु आर लिसनिंग, क्या आप एसएसबी के बारे में थोड़ा डिटेल में बता सकते हैं जैसे कि जो 5 days का प्रोसीजर रहता है, डे 1 से लेके डे 5 तक क्या क्या चीजें होती हैं? एंड वो काफी लोग जैसे जो इंटरव्यू प्रोसेस के बारे में नहीं जानते, तो उनके बारे में थोड़ा डिटेल में कि किस टाइप की चीजें होती हैं नो। राइट राइट राइट। सो बेसिकली एसएसबी इज द 5 day इंटरव्यू प्रोसेस। सो ये जो इंटरव्यू बोल रहे हैं, इट इज नॉट जस्ट इंटरव्यू, इट इज मोर लाइक एनालाइजिंग अ पर्सन और अ कैंडिडेट फ्रॉम ऑल द थ्री पर्सपेक्टिव जनरली नोन एज मनसा वचा कर्मा। बेसिकली हाउ यू थिंक, हाउ यू स्पीक एंड हाउ यू डू। सो आप कैसे बोल रहे हो, कैसे सोच रहे हो और कैसे कर रहे हो। सो इसी टेस्ट को 5 दिन में डिवाइड करा जाता है। सो द वेरी फर्स्ट डे टास्क इज नोन एज द स्क्रीनिंग टास्क या द स्क्रीनिंग डे, जिसमें आपके दो टास्क होते हैं। वन इज योर officer intelligence rating, which happens to be a test where logical reasonings and verbal, non-verbal, thoda dice, and all those questions are mix and match in about a time constrained manner, जिसमें आपको कुछ set of questions एक limited time में complete करनी होती है, and you have to solve and you have to do that bubbling. And second task will be PPNDT, which stands for Picture Perception and Discussion Test, जिसमें आपको एक पिक्चर दिखाई जाती है and based on that you have to write a story and little bit of filling a box and action and title, and there are a number of things inside it. So आपको स्टोरी लिखनी होती है, फिर आपको उसी स्टोरी को नरेट करना होता है बहुत स्लोली, समझदार तरीके से। एंड देन देर विल बी लॉट ऑफ पीपल राइटिंग डिफरेंट स्टोरीज। तो यू ऑल हैव टू पार्टिसिपेट इन डिस्कशन टू कम टू कॉमन कंसेंसस, जिससे कि आप और बाकी सब लोग एक कॉमन स्टोरी पे आए। इसका मतलब ये नहीं है कि किसी की स्टोरी को बेस बनाना है, बट इट इज मोर लाइक कि आप लोग के सारे अच्छे अच्छे पॉइंट्स को मिला के एक अच्छी स्टोरी बनाने पे फोकस करना है। तो ऐसे करते करते आपका पूरा पीपीएनडीटी कवर हो जाता है। एंड देन based on the the performance of OIR as well as PPNDT, a result is being made, and those who are deemed to be like the person who can clear the upcoming days, so they are retained, basically उनको select कर दिया जाता है, and बाकी लोग को as such फिर स्टेशन में भेज दिया जाता है। So what happens is, to give you an instance, for example, if 100 odd people reports at day 1, so out of which around 20 to 30 people will be staying there for the next 4 days. So the remaining 70 or the other 80 people
विल बी ड्रॉट बैक टू द रेलवे स्टेशन या जहाँ से भी उनको जैसे जाना है. सो बेसिकली ये आपका डे 1 होता है. देन फॉलोड बाय डे 2, 3 एंड 4. दीज आर द रियल टेस्टिंग डेज, जहाँ पे आपका टेस्ट होता है रिगार्डिंग साइकोलॉजिकल टेस्ट, जो कि मनसा है जैसे आप सोच रहे हो. इसमें देर आर 4 टेस्ट, starting with thematic apperception test, which is a test where you are seeing consecutive pictures and you have to write a story in a very time constrained fashion. तो इसमें आप स्टोरीज लिखते हो और इसमें आपको ऐसे नरेशन या जीडी नहीं करनी होती, तो बैक टू बैक आप स्टोरीज लिखो. एंड इन दिस टास्क लाइक यू विल बी राइटिंग 12 स्टोरीज, 11 + 1 पिक्चर, बेसिकली 11 पिक्चर, एंड 1 पिक्चर विल बी ब्लैंक स्लाइड, जिसमें आपको अपनी इमेजिनेशन से स्टोरी लिखनी होती है. Then there is this second task known as word association test. जैसे you will be showing a word, you will be shown a word uh, in which you have to think of a sentence and then write a sentence around it in a short span of 15 seconds. तो ऐसा आपको 60 words के sentences लिखनी है, and around 15 minutes तक ये टास्क चलते रहता है. पोस्ट दैट आपका एक और टेस्ट होता है नोन एज सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, जिसमें आपको अराउंड 60 सिचुएशंस दिए जाते हैं इन अ बुकलेट. तो आप जितना मैक्सिमम सॉल्व कर पाओ विदाउट लाइक मिसिंग सम टास्क या सिचुएशन आपको एड्रेस करने होते हैं. यू हैव टू राइट दैट रिस्पॉन्स ऑफ द सिचुएशन. वेरी सिंपल सिंपल सिचुएशंस ही रहते हैं, नॉट दैट डिफिकल्ट. बट एट द सेम टाइम आपका रिस्पॉन्सेस में ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप कैसे देश के प्रति काम करोगे, कैसे आप अपने बैलेंस लाइक अच्छे से डिसीजन ले पाओगे, एंड एट द सेम टाइम हाउ वेल एंड ऑर्गेनाइज्ड यू आर एज पर वॉट एवर यू आर सेइंग, हाउ डिटेल्ड अप्रोच यू आर फॉलोइंग. ऐसा नहीं कि यू आर अटेम्प्टिंग टू मेनी क्वेश्चंस एंड हैविंग अ वेरी लेस क्वालिटी ऑफ इट. बेसिकली क्वालिटी ओवर क्वांटिटी. सो ऐसा है. एंड देन देर इज दिस फोर्थ टास्क नोन एज सेल्फ डिस्क्रिप्शन टास्क या टेस्ट, जिसमें आपका देर आर सम सेट ऑफ क्वेश्चंस. बेसिकली आपके एज अ पर्सपेक्टिव में 5 लोगों का ज्यादा ओपिनियन रहता है. तो फर्स्ट इज योर पेरेंट्स, सेकंड वन इज योर टीचर्स और एम्प्लॉयर्स, देन थर्ड वन इज योर फ्रेंड्स और कलीग्स, फोर्थ वन इज योर ओन ओपिनियन, एंड फिफ्थ वन इज व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू वुड लाइक टू बिकम. सो ऐसे 5 ओपिनियंस पे आपको एक पैराग्राफ लिखना होता है इन अबाउट 15 मिनट्स, एक एक पैराग्राफ ऑफ अराउंड 6 to 7 लाइन्स. एंड ऐसे करते करते दिस होल 4 टेस्ट विल स्पैन ऑफ अराउंड 2.5 hour to 2 hours, अराउंड अराउंड अप्रोक्सीमेटली. और ऐसे करते हुए आपको पूरा साइकोलॉजिकल टेस्ट कंप्लीट हो जाता है. सो दिस इज जस्ट द डे 2. एंड दोज हु आर डन विद द डे 2, कुछ लोग के इंटरव्यूज उसी दिन होते हैं. सो दैट इज द 1-to-1 इंटरव्यू, जिसमें आपके बारे में पूछा जाता है. सो इन एसएसबी जैसे हम कॉर्पोरेट्स या कहीं बाहर भी चीज़ें लोग करते हैं, रेज्यूमे या सीवी बनाते हैं, इन एसएसबी देयर इज अ फॉर्म कॉल्ड PIQ, स्टैंड्स फॉर पर्सनल इन्फॉर्मेशन क्वेश्चनर. सो जैसे हम उसमें अपने डिटेल्स वगैरह फिल करते हैं, जिसके थ्रू या जिसके ऊपर आपका एक सिलेबस बन जाता है इंटरव्यू ऑफिसर के पास. एंड बेस्ड ऑन दैट लॉट ऑफ क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड, lot of situations and lot of things will be like taken care by interviewing officer. So this interview will be of around as short as 5 to 10 minutes to as long as 2.5 hours as well. ये depend करता है from candidate to candidate as well as the person who is taking your interview. तो कुछ लोग का अगर इंटरव्यू हो जाता है तो वेल एंड गुड, जिनका नहीं होता है उनका डे 3 या डे 4 तक फैल जाता है इंटरव्यू, एंड कभी कभार डे 5 तक भी फैलता है फॉर सम SSB बोर्ड लाइक इन एयरफोर्स जनरली. एंड फिर आ जाते हैं डे 3 में. डे 3 एंड डे 4 आर नोन एज GTO डे, बेसिकली द ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर्स डे या ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर्स टास्क. वाई दिस डे इज कॉल्ड टू बी दिस, बिकॉज इसमें आप बाहर आउटबाउंड ट्रेनिंग करते हो, आउटबाउंड एक्टिविटीज करते हो. जैसे कि आपका जो कर्मा वाला एक्टिविटी है, जैसे मनसा तो हो गया, वचा इज टेकन केयर बाय इंटरव्यू, एंड कर्मा इज टेकन बाय द GTO टास्क. सो इन दिस GTO देर आर 10 tasks evenly divided into some task in the inbound areas like group discussion, group planning exercise, lecturate, ऐसे कुछ टास्क हो गए. एंड देर आर आउटबाउंड एक्टिविटीज लाइक progressive group task, half group task, command task, final group task, GOR, group obstacle race, and individual obstacle. So these are tests, around 10 tasks in a line. तो कुछ टास्क डे 3 में होती है और कुछ टास्क डे 4 में होती है. सो यहाँ कैंडिडेट के लिए एक सिंपल एडवाइस रहेगा कि बेसिक फिटनेस वर्क्स, ज़्यादा आपको टॉप नॉच फिटनेस लेने की भी जरूरत नहीं है. एंड एट द सेम टाइम आप ऐसा भी नहीं कि आप कुछ भी नहीं कर रहे, यू हैव टू बी सिंपली थोड़ा बहुत आपको करना है, भागना है, दौड़ना है. यू हैव टू फिजिकली फिट एंड मेंटली रॉबस्ट. और फिर थोड़ा बहुत आपके करंट अफेयर्स का नॉलेज होना चाहिए ड्यूरिंग ग्रुप डिस्कशन, एंड यू हैव टू स्पीक. तो ऐसे बहुत सारे एक्टिविटीज रखती है. एंड देन देर इज दिस ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज, जिसमें आपको एक सॉर्ट ऑफ मॉडल दिया जाता है, जिसके ऊपर एक स्टोरी रहती है, आपको उसको सॉल्व करना होता है. बिकॉज इन देर आर सम सिचुएशंस इन द मॉडल यू हैव टू सॉल्व इन सम टाइम फ्रेम. इट इज़ वेरी टेक्निकल, सो अगेन उसमें बहुत सारी चीज़ें रहती है.
एंड इट इज ईजी ऑल्सो, एक बार आप समझ जाते हो, समझाया भी जाता है वहाँ पे कैसे करना है, तो इट बिकम्स ईजी। देन देर इज दिस एक्टिविटी कॉल्ड लेक्चरेट, जहाँ पे इट इज सिमिलर टू एक्सटेम्पर। आपने अगर स्कूल में एक्सटेम्पर में पार्टिसिपेट किया है, लाइक जहाँ पे आप 3 मिनट में आपको एक टॉपिक दिया जाता है, आपको फिर 3 मिनट के बाद उस 3 मिनट के लिए बोलना पड़ता है, अगले 3 मिनट के लिए। तो बेसिकली इट्स लाइक अ 6 मिनट टास्क, 3 मिनट आपको प्रिपेयर करने का टाइम दिया जाएगा फॉर टू स्पीक फॉर 3 मिनट्स। अगेन टॉपिक्स विल बी एज इजी, लाइक एज इजी आपका आ सकता है माई फर्स्ट डे एट स्कूल टू बी एज हार्ड एज लाइक समथिंग वेरी एक्स्ट्रॉर्डिनरी टॉपिक, कुछ भी हो सकता है। जैसे है ना, मान लो न्यूक्लियर डील हो गया, समथिंग लाइक दैट। तो अब आप इसी के बीच में रेंज करेगा, देयर विल बी 4 टॉपिक्स, यू कैन सिलेक्ट एनी वन ऑफ इट एंड बेस्ड ऑन दैट हो जाएगा। ओके ओके। सो एज सुन एज वी आर डन विद द लेक्चरेट, उसके बाद फिर कुछ आउटबाउंड एक्टिविटीज होती है, जैसे आपकी प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क होगी। बेसिकली इसमें क्या होता है, देर इज सेट ऑफ टास्क विच आर लाइक इन द सीक्वेंशियली, आपका डिफिकल्टीज बढ़ते रहता है। एज द नेम सजेस्ट, प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क मतलब प्रोग्रेसिवली द डिफिकल्टी राइजेस। एंड इन दिस देर आर सम सॉर्ट ऑफ टास्क लाइक जिसमें आपको कुछ फट्टा, बल्ली, रोप्स दिए जाते हैं, बेसिकली वुडन प्लैंक, a wooden log and some ropes as well as a like load is nothing but a drum like structure। आपको ये सब चीजों के थ्रू विद द हेल्प ऑफ ग्रुप आपको कुछ चीजों को क्रॉस करना होता है विद द हेल्प ऑफ द सम स्ट्रक्चर्स बीइंग मेड। एंड इसमें क्या होता है कि दिस like activities are designed in such a way that to give you a simulation of real war like conditions। मान लो इन फ्यूचर इफ यू आर इन आर्मी, आपको कहीं पे ब्रिजेस या नालास क्रॉस करना है, तो हाउ योर बेसिक कॉमन सेंस विल बी इन यूज। एंड एट द सेम टाइम कहीं आप अटक रहे हो, तो हाउ योर लॉजिकल रीजनिंग्स आर बीइंग टेस्टेड ऑन ग्राउंड। तो ये लॉजिकल रीजनिंग अपने में ही बहुत ज़्यादा बड़ा टर्म है, तो ऐसे करते करते ये सब टास्क का असेसमेंट बेसिकली किया जाता है। इन द सेम वे द हाफ ग्रुप टास्क इज बीइंग कंडक्टेड, द फाइनल ग्रुप टास्क, द कमांड टास्क। कमांड टास्क इज वन सच ब्यूटीफुल एक्टिविटीज जहाँ पे आपको कमांडर बनाया जाता है, बेसिकली यू आर द लीडर एंड यू विल बी हैविंग टू सबऑर्डिनेट्स। एंड ऐसे करते करते you have to perform that task। and after all these things there is this task called group obstacle race, जिसमें सारे ग्रुप्स मिलके compete करते हैं with the help of a gunny bag like structure which resembles to be a shape resembles to be to give a shape like snake, इसको snake race भी बोला जाता है। एंड पोस्ट दैट ऑल दीज एक्टिविटीज, आपका एक और होता है इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल, जिसमें आपको 3-3.5 मिनट्स में यू हैव टू क्रॉस सम स्ट्रक्चर्स, सम ऑब्स्टिकल्स इन एन ऑर्डरली, नॉट इन एन ऑर्डरली फैशन, इन सम लेवल ऑफ डिफिकल्टीज। किसी किसी के लिए कुछ सेट ऑफ एक्टिविटीज डिफिकल्ट हो सकती है, इजी भी हो सकती है। तो योर जॉब इज टू डू एज मेनी एज यू कैन विद इन दिस टाइम लिमिट, एंड यू आर ऑल्सो अलाउड टू रिपीट आफ्टर द ऑल द टास्क आर completed। सो आपको ये सब रहता है। एंड आफ्टर डे 3 एंड डे 4 योर होल GTO आर डन। एंड जिन लोग के अगर इंटरव्यूज रह जाते हैं, एज आई टोल्ड इन द साइक पार्ट, कि साइक के बाद जिनका इंटरव्यू रह गया, सो दे कैन अंडरगो देयर इंटरव्यू पोस्ट GTO डे। GTO का जो भी आपका 11 o'clock या 12 o'clock के बाद जब अवेलेबल होता है। फॉलोड बाय द डे 5, द लास्ट कॉन्फ्रेंस डे, जिसमें जितने भी आपके एसेसर्स रहे हैं, जितने लोगों ने भी आपका असेसमेंट किया है, बेसिकली द साइकोलॉजिस्ट, द इंटरिंग ऑफिसर एंड द GTO ऑफिसर, they all will be having their own judgment, they all will be sitting together and they will be finalizing as to if you are able to make it or not, as in if you are able to make it for the training or not। So that doesn't mean that you're selected, and that doesn't mean that someone who is not selected और नॉट गेटिंग रिकमेंडेड इज नॉट, है ना, इज नॉट समथिंग, मतलब उसको कुछ नहीं कर सकता। सो इन दैट वे लाइक दिस होल थिंग इज बीइंग कंडक्टेड। फिर कॉन्फ्रेंस एक एक कैंडिडेट का होता है, जितने भी लोग स्क्रीनिंग होते हैं, एंड वो बेस्ड ऑन दैट लाइक कॉन्फ्रेंस, जैसा भी आप परफॉर्मेंस देते हो आफ्टर ऑल द असेसमेंट्स आर बीइंग देयर, तो आपका फिर एक रिजल्ट निकलता है। एंड दोज हु आर एबल टू क्लियर दैट कॉन्फ्रेंस, बेसिकली द डे 5 या द होल डे 2, 3, 4 एंड 5 मिला के, so they will be again staying there for another few days for their medicals। And in some boards, particularly in Air Force, they are also sent back along with everyone, but उनका medicals के लिए बाद में बुलाया जाता है। And those who are not able to clear, they will be again sent back to the railway station as the previous procedure। and फिर again the medicals will happen, and then merit and medical, all these things will happen। so this is the whole 5 days activities। तो बिफोर मूवी, मतलब क्योंकि मेरे को इसमें काफी ज्यादा डाउट्स हैं, तो मैं आपसे भी पूछूंगी, लेकिन उससे पहले कि दिस पॉडकास्ट शुड नॉट गेट बोर्ड, वी हैव अ रैपिड फायर फॉर यू इन विच वी विल नो मोर अबाउट यू एंड थोड़े क्वेश्चंस जो कि हमें और बताएंगे इस प्रोसेस के बारे में। तो शेल लेट्स स्टार्ट विद द रैपिड फायर। ओके, Sure। सो द फर्स्ट रैपिड फायर क्वेश्चन इज वन क्वालिटी ऑफिसर, वन क्वालिटी like officer like quality that one should have।
I believe sense of responsibility as well, very important for all the people. Okay. And how will you define yourself as a child? Child, Yeah. okay. So I would define myself to be very happening, enjoying moment and staying in the moment, Okay. And how will you define yourself in a word or maybe in a sentence? not giving up. Oh, that actually true. Okay. One myth about SSB. रेलवे स्टेशन से ही देखा जाता है लो कैंडिडेट को, ऐसा नहीं होता है. Okay. What habit keeps you disciplined or keep going? Writing what activities need to be done, basically the to-do list. ओके. सो अभी इस टू डू लिस्ट के बारे में भी बात करते हैं कि कैसे टू डू लिस्ट आप बनाते हैं. ओके. व्हाट इज द टर्निंग पॉइंट इन योर लाइफ? My very first like not recommendation, basically got to learn a lot of things about life and perspective from different people. एंड कॉलेज का एक्सपीरियंस, एनीथिंग अबाउट? Beautiful, amazing. Got to learn, not just learn, made good friends. The very first college, yes, enjoyed. बहुत ज़्यादा कोविड भी आ गया तो एक्स्ट्रा एंजॉयमेंट. राइट. एंड हैव दिस थॉट ऑफ गिविंग अप एवर कम टू यू, एवर केम इनटू योर माइंड? Almost daily, but that one burning desire pushes every day. Okay. So this was all the questions that were in the rapid fire. तो yeah, जैसे as you told कि to do list बनाना बहुत जरूरी है, उससे डिसिप्लिन रहते हैं, तो वो to do list आपकी कैसी होती है? To-do list is again very basic. जैसे there is a principle known as Eisenhower matrix. So those who are in this watching this podcast, many people might relate this, might relate with this कि आपको पता होगा there are few activities in life which are important but urgent. So that has to be given super priority. Then there are some activities which are known as important and not urgent, जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए. Then there are some activities which are not important but urgent. So you can delegate those activities. Then there are not urgent, not important, like using phone, social media and this thing. तो ऐसे करके टू डू लिस्ट बन जाता है. तो यू आर मोर फोकस्ड कि पहले दूसरे वाले लाइक आपका जो भी स्पीयर पे काम करना है दैट इज नॉट अर्जेंट बट इम्पोर्टेंट, क्योंकि वो आपको लाइफ चेंजिंग एक्टिविटीज दिलाती है. राइट. वो मेरे को So, टू डू लिस्ट से काफी हुआ था. हम लोग जब बचपन में हम लोग ऐसा करते थे कि 1 से 2 PM तक हमें ये करना है, देन 2 to 3 ये, 3 to 4 हमारा ब्रेक टाइम. correct. तो उसमें फिर मतलब काफी फ्लॉज हो जाते हैं, फिर उसमें राइट. एक्चुअली आप फिर अपने आप को कर्टेल कर देते हो. एंड थोड़ा बहुत अगर आप लिबर्टी भी नहीं दे पाते अपने आप को कि इट ऑल द वर्क गेट्स एक्सटेंडेड, देन फिर वो एक्स्ट्रा हो जाता है. देन आप डेली अपना टू डू लिस्ट बना के अपना जो डे है शेड्यूल करते हैं. राइट. एंड किस एक्सटेंट तक वो फॉलो होती है? देखो आई फोकस एज आई टोल्ड यू, वो जो इंपॉर्टेंट अर्जेंट उस पर मैं ध्यान रखता हूँ. जैसे मान लो अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट वाले एक्टिविटीज है, जैसे लाइक कंडक्टिंग मीटिंग्स, ऑफिस का काम हो गया एंड ऑल्सो टेकिंग अप सम क्लासेस एंड ऑल दोस थिंग्स. सो उसको इमीडिएट उसी दिन करना, यू कैंट पोस्टपोन इट और यू कैंट डेलीगेट इट. अगर आप फिजिकली इन्वॉल्व नहीं हो या वहाँ पे पहुंचे नहीं हो तो कहीं ना कहीं वो फिर काम काम का नहीं रहता है. तो उसको इंपॉर्टेंटली करना है, बेसिकली द फायर फाइटिंग सिचुएशन डेली के. अब जैसे मान लो नॉट बेसिकली नॉट इम्पॉर्टेंट बट अर्जेंट. जैसे फॉर एग्जांपल आपका हो गया कि कुछ ऐसा एक्टिविटीज जहाँ पे आपको कुछ ज़्यादा वैल्यू नहीं मिलने वाला, बट ठीक है ना, अर्जेंट है बहुत. जैसे किसी को कुछ बुक पहुंचाना है, किसी को कुछ देना, तो आप किसी और के थ्रू भी करवा सकते हो. या बेसिकली किसी को कुछ नोट्स वोट्स भेजना, समथिंग लाइक दैट. ऐसा हो गया आपका. फिर जो इम्पोर्टेंट एंड जो नॉट अर्जेंट है, जैसे मान लो समथिंग ऑन योर सेल्फ, जैसे मान लो फिजिकल फिटनेस हो गया किसी किसी के लिए, या फिर मान लो सम प्रोजेक्ट वर्क विच दे आर डूइंग, या फिर मान लो किसी किसी का एग्जाम की प्रिपरेशन होगी, किसी किसी के जॉब में अपलिफ्टमेंट हो गया, अपग्रेड करना हो गया. सो ऑल दोस थिंग्स. एंड लास्ट जो क्वाड्रेंट है, जो नॉट अर्जेंट नॉट इम्पोर्टेंट, उसको आप जितना हो सके अवॉइड करो. मतलब उसको एकदम लिमिटेड टाइम दो या टाइम ही मत दो, तो भी ऑनेस्ट. जैसे इंस्टाग्राम हो गया या फिर एनीवेयर, या फिर कहीं ना कहीं अनवांटेड डिस्कशंस जिसमें अनहेल्दी डिस्कशंस हो, यू कैन अवॉइड. मीनिंगफुल डिस्कशंस, यस, उसको आप टॉप में भी पुश कर सकते हैं. सो मैं टाइम कंस्ट्रेंट नहीं रखता था, मैं इस 4 क्वाड्रेंट में फिट करता था एंड दैट गिव्स मी एन अल्टीमेट सेटिस्फेक्शन. तो नाउ जो भी हमें सुन रहे हैं वो ये फॉलो कर सकते हैं, एंड देन दे कैन बी डिसिप्लिन, दे कैन हैव दैट थिंग इन देयर लाइफ टू. ओके. सो कमिंग बैक टू दैट एसएसबी पार्ट,
जिसमें आपने बताया था कि डे 1 होता है, डे 2 उसमें ये सब चीजें होती हैं। तो आप कुछ एक्सपीरियंस या फिर कुछ क्वेश्चंस शेयर करोगे जो आपसे पूछे गए थे और आपने उनको कैसे डील करा था? पर्टिकुलरली फॉर इंटरव्यू? या पर्टिकुलरली लाइक डे 1 में जैसे आपने बताया था कि होता है OIR टेस्ट, होता है फिर PPDT होता है। तो उसमें किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे and क्या इमेज आपको दिखाई गई थी? Okay, okay, fine. Okay, I will make it as easy as I can. So OIR में there are a lot of questions, ठीक है, and some questions are very easy, like जैसे there are this like jumbled words, ठीक है, जैसे आपको एक सेंटेंस दिया जाएगा एंड उसमें एक ऐसा जम्बल्ड वर्ड रहेगा, तो उसमें वो मीनिंग भी दिया जाएगा कि दिस मीनिंग ऑफ दिस जम्बल्ड वर्ड इज सिमिलर टू दिस। सो आपको क्या करना है, पहले उसको रीअरेंज करना है एंड फिर बोला जाएगा व्हाट विल बी द सेकंड लास्ट वर्ड ऑफ द जम्बल्ड वर्ड। सो इन दैट वे आपको ऑप्शन दिए जाएंगे उसी में से, देन यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल मेक रीअरेंज दैट वर्ड एंड देन यू हैव टू टेक दैट वर्ड जो सेकंड लास्ट है एंड देन आपको उसके हिसाब से ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस रहते हैं। देन देर आर सम डाइस क्वेश्चंस, लाइक दो ग्रुप ऑफ डाइसेस दिए जाते हैं एंड बोला जाता है कि एक और डाइस दे दिया जाता है तो बोला जाता है विच दिस डाइस रिजेंबल्स टू विच ग्रुप, समथिंग लाइक दैट। तो आपको थोड़ा डाइस को है ना थोड़ा अपने दिमाग में घुमाना पड़ता है एंड इन दैट वे यू हैव टू सॉल्व इट। देन देर आर लिटिल बिट ऑफ मैथ्स वाला क्वेश्चन, वेरी बेसिक मैथ्स, थोड़ा बहुत आपको आना चाहिए, विच नंबर कम्स नेक्स्ट इन द सीरीज टाइप, ठीक है। फिर अगेन सम पैटर्न फॉर्मेशंस आते हैं कि विच फिगर विल कम नेक्स्ट इन द सीरीज, तो ऐसे ही करते करते जनरल क्वेश्चंस रहते हैं। देन सम क्वेश्चंस विल बी कि कुछ एक आपको फ्रेज या आइटम दे दिया, तो फिर बोला जाएगा विच लाइक व्हाट इज द मोस्ट ऑप्टिमम मीनिंग ऑफ इट, तो ऐसे कुछ चार मीनिंग दिए जाएंगे। इट इज़ वेरी इजी, आप बाकी तीन ऑप्शन इजीली एलिमिनेट कर देते हो क्योंकि उसका ऐसा कोई सेंस बनता नहीं है। एंड समटाइम्स इन ओआर व्हाट हैपेंस, काफी बार तो ऑप्शन आपको बुकलेट में टिक दिखते हैं, ठीक है, भले इट इज नॉट अलाउड टू टिक, तो काफी लोग उसको भी ब्लाइंडली फॉलो करके अपने कॉपी कर लेते हैं बबलिंग में, तो इट इज वेरी रेयर बट इट हैपेंस। तो यू कैन ऑल्सो वेरीफाई, मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज राइट आपके ओनली। साथ ऐसा हुआ है एंड कभी? बहुत बार हुआ है ना, एंड इट इज अ वेरी रूटीन प्रोसेस, और वो सभी के साथ होता है, दोज आर वाचिंग इट एज वेल। और कहीं ना कहीं देखो, आई वुड सिंपली सजेस्ट, अगर ऐसा लग रहा है आप ज्यादा दिमाग मत लगाओ, गो फॉर दैट विद दैट आंसर ओनली, क्योंकि उसने ऑलरेडी दिमाग लगा चुका है आपसे पहले, ठीक है, किसी ने अगर उसे बुकलेट को सॉल्व किया तो यू कैन सेव सम टाइम, इन्वेस्ट समवेयर एल्स। हाँ, यू कैन क्रॉस वेरीफाई अगर आपके पास थोड़ा बहुत लग रहा है कि नहीं, चेक कर लेते हैं, कभी या कभार एक आध क्वेश्चन रॉन्ग हो सकता है, बट शायद आप भी सॉल्व करोगे तो भी रॉन्ग ही आता आपको भी, तो दैट इज व्हाट आई फेल्ट कि गो विद द थिंग, मतलब सी जहां जहां टाइम बचा सकते हो यू कैन गो फॉर दैट। Coming to the PPTT part, there are a lot of pictures, many pictures which I did in terms of practice as well as also in during the real SSB. So one such picture which I can easily tell is, कभी कभार ऐसे पिक्चर्स आते हैं जहाँ पे पूरा हेजी होता है, जनरली पीपीटीटी पिक्चर्स आर वेरी हेजी, ब्लैक एंड व्हाइट, ऐसा बहुत ज्यादा नहीं दिखता। दीज डेज पिक्चर्स आर गेटिंग बेटर, है ना, लोग दिख रहे हैं, कैरेक्टर्स दिख रहे हैं। सो देर इज वन सच पिक्चर जहाँ पे मान लो फ्यू पीपल आर देयर एंड सम हॉस्पिटल लाइक सिचुएशन इज देयर, या फिर बेड्स वगैरह दिख रहे हैं, लोग लेटे हैं, कुछ लोग घूम रहे हैं, तो ऐसे कुछ पिक्चर्स विच आई कैन रिकलेक्ट एज ऑफ नाउ इन दिस मीटिंग, इन दिस शो। तो फिर बस वैसे पिक्चर दिखाई गई फॉर 30 seconds एंड मेनी पीपल रोड स्टोरी रिगार्डिंग कि किसी कुछ कोविड हो गया, फिर कोविड में सबको वैक्सीनेशन दे रहे हैं, फिर किसी ने लिखा कि कुछ हेल्थ इमरजेंसी है, सबको इमीडिएट हेल्प मतलब दिया, मतलब देयर विल बी देयर वर फ्यू पेशेंट्स लाइंग ऑन बेड, पेशेंट्स भी नहीं लग रहे थे, देयर आर सम पीपल, ठीक है। तो किसी ने बनाया कि कुछ क्या बोलते हैं, सब मेडिकल कैंप इज हैपनिंग विच इज ऑल्सो गुड। फिर विच आई रिमेम्बर आई मेड अ स्टोरी रिगार्डिंग ब्लड डोनेशन कैंप एंड रिगार्डिंग सम लाइक वर्ल्ड, है ना, मतलब कुछ ब्लड डे या ऐसा कुछ होने वाला है, ठीक है। तो फिर उसके तहत सम डॉक्टर्स, है ना, थॉट टू मेक दिस इनिशिएटिव ऑन ग्राउंड्स, तो वो लोग किसी गांव में गए एंड हाउ दे एक्चुअली डिड दिस ड्राइव, या फिर किसी आप पर्सपेक्टिव ऑफ एन एनसीसी कैडेट के थ्रू भी डाल सकते हो, बिकॉज सिंस आई डिड माई एनसीसी ड्यूरिंग दैट टाइम। तो एनसीसी कैडेट्स का रहता है कि आपको ये सब ब्लड डोनेशन वगैरह, इवन एनएसएस वालों का भी रहता है, तो इन दैट वे काफी हद तक अपने रियल लाइफ और अपने जो इमेजिनेशन को मैच करके आई यूज्ड टू राइट स्टोरीज एंड काफी हद तक डिटेल एक्टिविटीज मेंशन करता था कि कैसे कैसे ब्लड डोनेशन लिया, मतलब ब्लड डोनेशन को एग्जीक्यूशन में लेकर आए, जैसे कैसे पहले लोग को इनवाइट किया, फिर कैसे जब इनवाइट इनविटेशन करने के तो उनके एक बेसिक हेल्थ मतलब मेडिकल प्रोफाइल या हेल्थ प्रोफाइल बनाया, उनका बीपी चेक किया, क्योंकि यू नीड अ हेल्दी ब्लड ऑब्वियसली, तो मतलब बेसिक कॉमन सेंस लगाना, ऐसा नहीं कि आप सीधा गए सिरिंज लगाया और ब्लड ले लिया। तो दीज आर इम्प्रैक्टिकल वेज ऑफ डूइंग और सॉल्विंग समथिंग। तो आपने ऐसे ऐसे किया, फिर लोग को ब्लड लेने के बाद उनको रिफ्रेशमेंट्स दिए, सर्टिफिकेट्स दिया, तो ऐसे छोटे 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 चीज़ है,
जनरली अगर कोई लिखता है तो फिर अच्छा रहता है। तो इन दिस वे माई लाइक वन ऑफ माई पीपीडीटी वॉज कवर्ड एंड आई वॉज फॉर्चुनेट इनफ टू क्लियर दैट स्क्रीनिंग फिर धीरे धीरे। So this is what I can recollect for this the day one part of this thing. ओके एंड मोस्टली क्या होता है कि व्हाट डू यू थिंक कि एसएसबी व्हाट दे आर टेस्टिंग इन अ कैंडिडेट? Okay. So okay. So see, SSB is basically testing if you have got a warlike mentality. This is something which we tell almost every day in the classes, every day. Even I have heard during academy time, NCC time, everywhere. जहाँ जिधर भी मैं सुन सकता हूँ, ये जो वॉर लाइक मेंटालिटी ये है कि आपके पास रिसोर्सेस की कमी है, टाइम की कमी है, हर चीज की कमी है, कि आप फिर भी खड़े उतर पा रहे हो डिस्पाइट ऑल दिस स्ट्रेसफुल सिचुएशंस. And if you see closely, all this SSB is a time-bound testing, टेस्टिंग टास्क. हर चीज पीपीएनडीटी में भी आपको कम टाइम में बहुत कुछ करना है, ओआर में भी वही करना है. तो इन व्हेन यू जॉइन द सर्विसेज, व्हेन यू डू द ट्रेनिंग, यू विल फाइंड योरसेल्फ आपके ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रेस और स्ट्रेन है कि आप फिर भी अच्छा डिसीजन या कैलकुलेटिव डिसीजन ले पा रहे हो. तो दिस इज व्हाट एसएसबी इज टेस्टिंग इन अ 5 डे प्रोसीजर इन डिफरेंट सॉर्ट ऑफ माइंड से. क्योंकि कभी कभी क्या होता है, आपका माइंड और आपका एक्टिविटी सिंक्रोनाइज नहीं हो रहा होता है, या आपका दिमाग तो चल रहा है बट आप कुछ और ही बोल रहे हो. क्योंकि आपके एक एक डिसीजन पे देर आर लॉट ऑफ पीपल्स लाइफ विच बी इन योर हैंड. एंड एज एन ऑफिसर इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट टू इंश्योर कि चीज़ों को कैलकुलेटिव तरीके से संभाला जाए, खुद भी दिमाग लगा पाए और बाकियों के भी इनपुट्स लिए जाए. तो बेसिकली बीइंग वेरी अडेप्टिव एट अ वेरी स्ट्रेसफुल सिचुएशन. So this is what SSB is looking for. ओके एंड जैसे कि अगर आपने ऐसे एनडीए क्लियर कर लिया एंड यू आर गोइंग फॉर एसएसबी बट लास्ट डे 5 तक अगर आप नहीं सिलेक्टेड हो, तो क्या वो प्रोसीजर फिर से पूरा शुरू होते फिर से आपको एनडीए देना पड़ेगा एंड फिर एसएसबी के लिए? यस, बिल्कुल पूरा शुरू करना पड़ेगा. आप भले आपने तो चलो फिर भी डे फिफ्थ का बताया, अगर कोई कैंडिडेट रेकमेंड होके मेडिकली फिट होके अगर मेरिट आउट भी हो जाता है तो फिर से उसको देना पड़ेगा. अगर मान लो कैंडिडेट अगर एकेडमी भी चल जाता है, अगर ही वांट्स टू चेंज हिज सर्विस, अगर मान लो उसको एनडीए से नेवल एकेडमी जाना है, तो ही ऑल्सो हैज टू गिव द होल 5 डे प्रोसीजर एंड ऑल्सो क्लियर द एनडीए. ठीक है, तो इट इज लाइक अ साइकिल, यू हैव टू क्लियर ऑलवेज एवरी टाइम. देर इज नथिंग कि आप अभी 5 दिन पहले ही रिकमेंड हुए तो वापस हो जाओगे. आपको फिर से वो रूटीन करना पड़ता है. एंड दैट इज व्हाट मेक्स द सिलेक्शन द टफेस्ट इन द होल कंट्री, है ना. यूपीएससी से भी ज्यादा टफ कर देते हैं इवन द सिविल सर्विस इंटरव्यू, बिकॉज अगेन इसका इंटरव्यू इज मोर ग्रिलिंग. रिटर्न इज सेपरेट बट या दिस इज द थिंग. तो व्हाट हैपेंस आफ्टर वी गॉट रिकमेंडेड? ओके. सो एज सुन एज यू आर गेटिंग रिकमेंडेड, आपका डॉक्यूमेंटेशन होता है. आपके बहुत सारे आपको डॉक्यूमेंट्स भरवाए जाते हैं, स्टार्टिंग विथ योर पुलिस वेरिफिकेशन थिंग एज वेल एज कैरेक्टर सर्टिफिकेट्स एंड ऑल्सो अदर डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू योर, मान लो अबाउट योर लाइफ एंड अदर, है ना, डॉक्यूमेंटेशन जिसको वेरीफाई किया जाएगा. एंड जब ये सब जब हो जाता है, उसके फिर मेडिकल के डॉक्यूमेंट्स भरवाए जाते हैं. तो बेसिकली क्या टेस्टिंग कैसे होगा, क्या होगा वहाँ पे उसमें रहता है. एंड सम लाइक आपको सम क्लियरेंसेस के फॉर्म भरने पड़ते हैं, दैट इज कि आपके पास कोई ऐसा हेल्थ इश्यूज एंड ऑल तो नहीं है. एंड उसके तुरंत बाद जनरली आर्मी एंड नेवी में देखा गया है कि उसके एज सुन एज यू आर गेटिंग रिकमेंडेड आपका मेडिकल्स स्टार्ट हो जाता है. सो मेडिकल्स आर बीइंग कंडक्टेड इन द नियर मोस्ट मिलिट्री हॉस्पिटल्स और कमांड हॉस्पिटल. तो बेसिकली जो भी हॉस्पिटल है फौज के, वहाँ पे आपको करवाया जाता है. एंड आपका एकोमोडेशन वगैरह इज टेकन केयर बाय द सर्विसेज ओनली. आपका रहना खाना पीना तो ऐसा कोई चिंता की बात नहीं है. इन एयरफोर्स जनरली व्हाट हैपेंस एज सुन एज यू आर मेकिंग इट, आपकी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह हो जाने के बाद, दोज आर गोइंग फॉर फ्लाइंग, तो दे विल बी गिविंग दिस एग्जाम कॉल सीपीएसएस. एग्जाम भी नहीं, सिमुलेशन टाइप एग्जाम वेयर यू हैव टू बी इन अ कॉकपिट एंड सिमिलर टू दैट. एंड वो करवाने के बाद पोस्ट दैट यू विल बी गिवन अ डेट फॉर मेडिकल्स. इट कैन बी विद इन अ मंथ और आफ्टर 1 मंथ और सो. तो मेडिकल्स वगैरह देने के बाद मतलब ओके, सो मेडिकल्स होता है, इट कैन बी एज शॉर्ट एज 2 to 3 days और इट कैन बी एज लॉन्ग एज 10-15 days एज वेल. तो मेडिकल्स में हर चीज चेक किया जाता है, टॉप टू डाउन, राइट टू लेफ्ट, एवरीथिंग, है ना. एंड मेडिकल्स फिर सब कुछ चेक होने के बाद, इफ यू आर क्लियर, इफ यू आर गेटिंग फिट तो वेल एंड गुड. इफ यू आर नॉट एबल टू क्लियर, देन ऑब्वियसली देर आर सम अदर डॉक्यूमेंट्स एज वेल. आपको वो सब भरना पड़ता है सो दैट यू कैन ऑल्सो अपील एट डिफरेंट मेडिकल सेंटर्स. तो दैट इज ऑल टुगेदर सेकेंड प्रोसेस. एंड ऐसे करते करते मेडिकल्स जो क्लियर कर रहे होते हैं, दे विल वेट फॉर देयर मेरिट लिस्ट एज वेल एज ज्वाइनिंग लेटर. इन सम एंट्रीज देर इज नो ज्वाइनिंग मेरिट लिस्ट एज सच, लाइक देर इज दिस नेवी एसएससी इंटरव्यूज में नहीं होता. तो you get the joining letter directly and obviously merit is being prepared at the headquarter level. And post that आपका जो ये जो जिन लोग मेडिकल्स क्लियर नहीं कर पाते इनिशियली, तो दे कैन गो फॉर अपील मेडिकल बोर्ड फॉलोड बाय रिव्यू मेडिकल बोर्ड एंड सो.
तो अगर इफ यू दे आर एबल टू क्लियर, वेल एंड गुड, तो उनको ज्वाइनिंग लेटर आएगी. इफ दे आर नॉट एबल टू क्लियर, अगेन इफ दे विश टू ट्राई अगेन फॉर द एसएसबी एंड क्लियर इट, ओके दे कैन डू इट. अदरवाइज तो है ना, इट इज अप टू देम. Introverts can't clear SSB. नहीं, नथिंग लाइक दैट. More attempts means lower chances. पीपल दोज हु मेक इट, हम उनको कल्टियंस करके बोलते हैं. आई चैलेंज्ड माय वर्डिक्ट ऑफ रिव्यू मेडिकल बोर्ड. कल्ट SSB का मतलब क्या हुआ? मछली क्यों फंसी? क्योंकि मछली ने अपना मुंह खोला. तो मछली को उतना ही मुंह खोलना चाहिए जितना है ना उसको एक्सपेक्टेड है. SSB is all about English fluency. तो ये ड्रीम था, आपने इतनी मेहनत करी इस चीज़ के लिए, आपने इतने अटेम्प्ट्स दिए, एंड आफ्टर दैट दिस थिंग हैपेंड. तो हाउ यू डील विद दिस मेंटली? ये जर्नी स्टार्ट हुई थी फरवरी 2022 में और टुडे 2026. So yes, it's been around 4 years and we have got a base of 10,000 plus students across the country. फिर उसके बाद मैंने गेट एग्जाम दिया, क्वालिफाइड गेट. राइट नाउ स्टडीइंग इन IIT गुवाहाटी. काफ़ी बार आपको इनिशियल डेज में छुप छुप के खाना पड़ सकता है.